Okay, chalo, let's see. So okay, when we talk about polymer, polymer का मतलब यही है, that is the basic thing is polymer is, एक मिनट, एक polymer is, let's say you are going to say multiple units of something, एक जो single simplest unit है उसका multiple times, that is going to be polymer. So that's why their molecular masses are going to be more, है ना, ज़्यादा होंगे. And what we are going to say is कि उनका application के बारे में देखेंगे. So let's थोड़ा सा इसका introduction यहाँ पढ़ लेते हैं. Do you think daily life would have been easier and colorful without the discovery of various uh, application of polymer, the use of polymer in the manufacturing of plastic bucket, saucers, children's toys, packaging bags, synthetic clothing material, automobile tire, gear, seals, electrical insulating material, and machine part has completely revolutionized the daily life as well as industrial scenario. Indeed, polymer are backbone of four major industry: plastic, elastomer, fiber, paint, and varnishes. Anyway, just understanding the word polymer is coined from two Greek words. Poly means many and mer means unit and part. The term polymer is defined as very large molecule having high molecular masses of 10 to the 3 to 10 to the 7 U, mu. Okay, this is unified mass. So 1 mole mass is going to be typically, we are going to say 1000 gram to 10 to the 7 means 1 crore gram. है ना? These are also referred as macromolecules, which are formed by joining repeating structural unit on a larger scale. The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomer. अब यहाँ बात आती है कि ये मोनोमर से बनने वाला जो पॉलीमर है वो कितने तरह के होंगे. तो दो तरह के पॉलीमर होते हैं. एक होता है जिसको बोलते हैं कोपॉलीमर. ठीक है, कोपॉलीमराइजेशन. इसमें क्या होगा, different monomers होंगे. We are going to see different monomers. मतलब एक से ज्यादा मोनोमर हो सकते हैं. एक मिनट. एंड होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? होमोपॉलीमर का मतलब है जिसमें सेम मोनोमर हो, है ना, ओनली वन मोनोमर है ना, homopolymer. So this is going to be same monomer. ठीक है. So that we are going to see कुछ example यहाँ पे आएंगे. We will see. So the repeating structural units are derived from some simple and reactive molecule known as monomer and are linked with each other by covalent bonds. ठीक है. This process of formalization of polymerization from respective monomer is called polymerization. The transformation of ethene to polythene, जैसे यहाँ पे एक example दे रखा है, ethene to polythene, right? अच्छा, अगर मैं बात करूं ethene की, है ना, ethene की, so this is one unit of ethene, another one unit is like this. So what will happen जब polymerization होगा, so this double bond is going to participate, let's say, started to form a bond between these two carbon, and similarly like this is going to, let's say, used to form a bond over here. तो ऐसे अगर next unit में ऐसे ये single bond बनती जाएगी, तो what is going to form? CH2, 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 like this. You can take any unit or you can write like N. So this is going to be polythene. Remember, in polythene there is no
ना डबल बॉन्ड, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 0 यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म, इस तरह के मेथड को बोलते हैं, है ना, वी आर गोइंग टू से एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो 3-4 वर्ड मैंने बताए वो याद रखने। एडिशन पॉलीमराइजेशन में देयर इज नो लॉस ऑफ है ना मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ये बस आपस में ऐड होते गए बस, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इथीन टू पॉलीथीन एंड इंटरेक्शन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है, एंड एडिपिक एसिड, क्या हो गए, राइट। तो पहला वाला केस क्या हुआ, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसमें ये क्या है, होमोमर है। दूसरे वाले केस में हमने लिया हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, इसका मतलब क्या है, अच्छा अगर मैं बोलता इथाइलिन डायमाइन तो क्या बोलते, CH2 CH2 NH2 NH2, राइट, इथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो दैट मींस CH2 is 6 times एंड डायमाइन मतलब 2 NH2 यहाँ पे लग गया। एडिपिक एसिड आपने हो सकता है नहीं देखा होगा, राइट, यस। तो एडिपिक एसिड कैसे होता है, तो दिस इज गोइंग टू हैव, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दैट इज 4COOH। अब इनमें होगा क्या, you see this is amine group and this is carboxylic acid group, so they are going to form amide, इसका एक H, राइट, और इसका OH आपस में कंबाइन करके H2O निकाल देंगे, so then they are going to form, अगर हम देखेंगे so what is going to form, CH2 whole 6 NH CO CH2 whole 4 CO, और यहाँ पे ये NH, ये यूनिट कितनी हो जाएगी, 6 N टाइम्स आएगी, ठीक है, क्योंकि फिर से एक और NH2 इधर जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, NH CH2 whole 6 फिर NH CO, राइट, काइंड ऑफ। तो दिस इज कॉल्ड, है ना, तो क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6। These 6 are going to tell us now how many number of carbon in monomer. How many number of carbon here, 6. How many number of carbon here, 4 plus 1 5 plus 1 6. So this is, है ना, नाइलॉन 6,6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज कॉल्ड, और इसमें साथ में क्या मिल रहा है, H2O का लॉस हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया। इसमें क्या होगा, स्मॉल यूनिट्स लाइक, है ना, H2O HCl NH3, है ना, इवॉल्व और फॉर्म। इसमें मॉलिक्यूलर मास का लॉस होगा, राइट, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें नेमिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी। एडिशन का मतलब क्या है, सिंपल ऐड हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा छोटा सा कोई यूनिट ऐसा निकल के लॉस में निकल सकता है ना, and this is going to be nylon 6,6. इसमें you can see we can have two different monomers, so this is going to be copolymer, comomer, addition, condensation, any problem, चलते हैं आगे। So are examples of two different type of polymerization reactions, हम यहाँ पे दे रही है, so this is ethene, फिर से polymerization हो रहा है, repeating unit polythene, hexamethylamine, adipic acid, polymerization nylon 6,6, ठीक है।
ये तो थोड़ी हमने बेसिक बातें बता दी थी, लेकिन हम यहाँ क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरा क्लासिफिकेशन. ये तो यही याद रखना है. कुछ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बेस्ड ऑन मोनोमर्स and based on type of, let's say, mechanism or types of product form. There are several classifications based on spatial concentration. The following are some of the common classification of polymer based on source. सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर. अभी आप देखोगे बायोमोलिक्यूल में we are going to see carbohydrate, proteins we are going to see, right? Carbohydrate, proteins, all these are, let's say, polymers. So these polymers are found in plants, animals. Examples are protein, cellulose. Cellulose मतलब carbohydrate, starch, ये भी एक type of carbohydrate, resin, rubber, ये सब. Now सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या है कि ये मोनोमर हमने यहाँ से लिया है ना, ये पॉलीमर यहाँ से लिया, इसको कुछ चेंज कर दिया. We have changed something by some chemical reaction. So cellulose derivatives as cellulose acetate, rayon, and cellulose nitrate, etc. are the usual example of this category. Synthetic polymer next. Synthetic is simply man-made. A variety of synthetic polymer as plastic, that is polythene, synthetic fiber nylon 66, and synthetic rubber Buna S are the example of man-made polymers extensively used in daily life. So this is just हमने अलग अलग जगह से मोनोमर्स लिए या बनाए उनको, और फिर उन मोनोमर से. सेमी सिंथेटिक में कुछ नहीं है, जो आपको नेचुरल पॉलीमर है उसी को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया. सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है, केमिकल कुछ, मतलब केमिकली हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो सेमी सिंथेटिक हो गया. सिंथेटिक का मतलब प्योरली हम ही बना रहे हैं, दैट इज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ. ठीक है. ब्यूना एस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है, ब्यूना एस जैसे रबर की एक कैटेगरी आएगी, उसमें क्या होगा, you are going to see butadiene. Butadiene मतलब COH2 CH double bond CH2. So this is 1,3 butadiene. ठीक है, ये हो गया ब्यूटाडाइन. और एक होता है कंपाउंड जिसको बोलते हैं स्टाइरीन. ये है स्टाइरीन. तो ब्यूटा है ना, यहाँ से आया ब्यूटाडाइन, एंड दिस इज एस फ्रॉम हियर ब्यूना एस. इन दोनों, ये दोनों मोनोमर अगर मिलके आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और जब कोई और आगे आएगा तो ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा एक और. ठीक है, आगे. So that's how it is going to form. If I am going to write, then CH2 CH double bond CH CH2. CH2, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 like this. So like this it is going to form. ठीक है, ये हो जाएगा. So this is Bunaeus. ये क्या है, रबर का एक टाइप है ना, सिंथेटिक रबर है. मोनोमर इन ईच कैटेगरी कम्स फ्रॉम. क्वेश्चन है ये. अगर मान लो हम बात करें प्रोटीन्स वगैरह या फिर नेचुरल पॉलीमर्स की, तो फिर वहां पे अपने आप दैट इज एग्जिस्टिंग इन नेचर, और ये पॉलीमर भी खुद बने हुए हैं ना, एग्जिस्टिंग इन नेचर, राइट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन नेचर.
Here what is happening, we are taking these polymer, उनको थोड़ा सा modify कर दे रहे हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो एक नए तरह के बन गए। सिंथेटिक पॉलीमर में बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोनोमर हम ही बना रहे हैं, है ना, फिर उनको पॉलीमराइज भी हम ही करा रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे इथीन है ना, इथीन आपको कहाँ से मिलेगा, मान लो थोड़ा बहुत आपको मिल गया अच्छे क्रूड ऑयल में, राइट, इथीन मिला थोड़ा बहुत, फिर क्या होगा, आपको अगर इथीन और बनाना है तो क्या करेंगे, हम इथेन से बनाएंगे, है ना, पायरोलिसिस करा के बना सकते हैं, उसमें इथीन मिलेगा, राइट, एंड वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे अदर पॉसिबिलिटी कि हमने पहले कुछ एल्केन से अल्कोहल बना लिया और अल्कोहल से फिर इथीन बना लिया, ऐसा कुछ करके हम इथीन बना सकते हैं। इथीन मोनोमर भी केमिकली ही बना रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी आर लेट्स से पॉलीमराइजिंग इट। इसमें किसका ज्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये 1 यूनिट यूज हो रहे हैं ना, तो व्हाई समथिंग इज गोइंग टू बी मोर, है ना, फिर बनेगा कैसे भाई, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ओके। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे कि दिस इज लीनियर पॉलीमर, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलीमर्स आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगे, क्योंकि लीनियर पॉलीमर का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, अच्छा होगा, मतलब ये एक दूसरे के क्लोज होंगे काफी, राइट, दिस इज गोइंग टू बी पैक्ड, so these polymer consist of long and straight chain, the examples are high density polythene, high density polythene क्यों बोल रहे हैं, ये पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा, these represented as, अब यहाँ पे बात आ रही है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हमें बात करनी होगी तो देन इट इज गोइंग टू बी, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज विनाइल क्लोराइड, so that is going to be vinyl chloride, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाए तो क्या बनेगा, so this bond is going to let's say shift here, so this is going to be CH2 CHCl का whole है, so this is polyvinyl chloride और शॉर्ट में PVC, कहाँ यूज होता है, कहाँ देखा है, पाइप में, पाइप सुनते हैं ना PVC के ऐड भी आता है, PVC पाइप्स, राइट, ठीक है, हाँ, तो ये भी क्या है ना, ऐसा आपको लिखिएगा, एक मिनट आगे चलते हैं, चलो, so this is polymer consists of very long straight chain, the examples are high density polythene, high density polythene का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा हो, इसलिए these are represented as this, ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें क्या होगा, these polymer contains a linear chain having some branch and that's why low density polythene, तो क्या होगा अगर ब्रांचिंग हो जाएगी, जैसे मान लो ऐसे हो रहा है, कहीं पे ऐसे ब्रांचिंग भी होती जा रही है, राइट, लाइक दिस, प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ नहीं पाएगा, राइट, they are not going to be very close to each other, that's why they have given this is the chains, इनके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए थी, जितना पैकिंग होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, राइट, that's why low density polythene, ठीक है, एग्जांपल्स याद रखने हैं, देखो इसमें और कुछ याद रखना नहीं है, पूरा में बस क्लासिफिकेशन है, थ्योरी है, ये जहां जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन होगी मैं बताता जाऊंगा। अब ये है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, थर्ड टाइप के। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में क्या है, यहाँ पे जो ये ब्रांचिंग हो रही थी ना, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो रही थी, ये ब्रांचिंग दूसरी वाली इस चेन से जुड़ी हुई नहीं थी, तो दैट्स व्हाई वी आर सेड ब्रांच पॉलीमर, मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होगा, वीक होगा, है ना, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन तो वीक होता है। अगर मान लो ये जुड़ जाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इन दोनों चेन के बीच में क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, हर चीज बन जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट ये सब बढ़ जाएगा। दीज आर यूजुअली फॉर्म
अब ये कब बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जरूरी क्या है ना? आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब चाहिए ताकि यहाँ पे बॉन्ड बन सके। दैट्स व्हाई टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए एटलीस्ट। बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर contains a strong covalent bond between the various linear polymer chain. Example Vecellite, melamine, ये सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है जैसे वेकेलाइट मेलामाइन के बारे में। तो नो पाई बॉन्ड ना, ये इसमें इधर शिफ्ट हो जाएगा ना भाई। इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए ये चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी समझो तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया, फिर ये वाला फ्री रेडिकल आगे वाले से बॉन्ड बना लेगा, तो पाई बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, बता रहा था वेकेलाइट। वेकेलाइट होता क्या है एक्चुअली में? ये आपका है फिनॉल और ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज आई एम राइटिंग लाइक लेट्स से लाइक ओके, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव अनदर लेट्स से फिनॉल यूनिट और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं इस H2O को निकाल दूं। ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक है, ऐसे चेन बनती जाएगी, राइट। फिर मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे भी ऐसा CH2 लगा दूं, ऐसा इस पोजीशन पे भी हो जाएगा, लाइक ओके, अंडरस्टूड। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं बेकेलाइट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कौन से टाइप की पॉलीमराइजेशन है यहाँ पे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू, दीज आर गोइंग टू लॉस, ऐसे चलता जाएगा, राइट। आगे आप बढ़ाते जाओ। समझ में आया प्रॉब्लम? ठीक है, और अगर इसमें पूछा जाएगा ये मोनोमर है पॉलीमर है, तो इट्स गोइंग टू बी सॉरी कोपॉलीमर है और होमोमर है तो कोपॉलीमर। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन एक्चुअली मेलामाइन हाउ डिड यू गेट दैट ब्रांच? अच्छा ये बताओ कि आपने ये फिनॉल पे इसकी रिएक्शन नहीं देखी है क्या कभी, एल्डिहाइड ऐड होते हुए? है ना, इस वाली पोजीशन पे कैसे करेंगे? अभी मैकेन अगर मान लो मुझे ये पूछना हो कि ये कैसे होगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड एसिडिक मीडियम, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। एक तरीका ये हो सकता है, यस, है ना, ये पॉजिटिव इधर आएगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, और दो पोजीशन है, बाद में ये एक H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2OH। फिर आपने एक H प्लस बनाया तो CH2 ये क्या बन गया, ऐसा बन गया। फिर आपने H प्लस दिया तो ये क्या बन गया CH2 प्लस यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये OH H2O करके निकल गया। फिर हम ये रिएक्शन करा सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ये एक तरीका है।
हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, फिर ये फिनॉल अटैक करेगा तो ये फिर CH2OH बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर हमने एक H+ लिया, ये निकल गया, फिर ये ऐड हो गया यहाँ पे। आना आगे तो बोलो, क्वेश्चन पूछने के बाद समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि IIT एडवांस में एक बार इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे गए थे। ठीक है, ये है मेलामाइन। तो याद करने का सिंपल तरीका क्या है, एक जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे ये कार्बन है, और फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, कितने हो गए? 6 नाइट्रोजन, 6 लोन पेयर। ठीक है, अब जिसको मेलामाइन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर उससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ये मेलामाइन है, इसमें भी सेम होता है। इफ वी आर गोइंग टू से अबाउट व्हाट इज द रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन, तो इसमें ये NH के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी फॉर्मल्डिहाइड की। ऐसे 2 यूनिट के बीच में ये यहाँ पे हम निकालते जाएंगे, राइट। H यहाँ से NH से एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अंदर वाले NH से एक और, ऐसे बीच में ये NH CH2NH ऐसे जुड़ता जाएगा, सेम। So this is called, इनको क्या बोलते हैं ना, we are going to say this is क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इनके लिए एक नया टर्म है, that is क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आगे और क्लासिफिकेशन में बातें आएंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा है, कोपॉलीमर, होमोमर, एडिशन, कंडेंसेशन, राइट। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। तो these polymer are defective, क्रॉस लिंक्ड है ना, और नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, याद रखना। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस तरह का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस। So that is nothing but polymer can also be classified on the basis of mode of polymerization into 2 subgroups. पहला है एडिशन पॉलीमर, दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड, एक्चुअली इंसुलेशन ऑफ स्विचेस, ये बेकेलाइट का यूज है। ठीक है, पहले बनाए जाते थे, बेकेलाइट का यूज ये था कि एज ए इंसुलेटर, राइट, यूज करते थे उसको। Anyway, the addition polymerization are found by repeated addition of, तो रिंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे इथाइन का बेंजीन में। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पे आपने पढ़ लिया, पॉलीमराइज वो भी एक तरह का पॉलीमराइजेशन ही हुआ ना, मतलब उससे रिंग बन गया, बस इतना है। यहाँ पे तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के हमने यहाँ पे किस तरह का मतलब मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, राइट। कंडेंसेशन में कुछ लॉस वॉस हो रहा है, एडिशन में कुछ नहीं, लॉस वॉस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है ना। We'll see. The addition polymers are formed by repeated addition of monomer molecule possessing double or triple bonds. So this is the important thing, right? So example, formation of polythene from ethene, polypropene from propene. However, the addition polymer formed by polymerization of a single monomeric species are known as homopolymer. Okay? And then this is going to be example polythene, right? The polymers of addition polymers from 2 different monomers are termed as copolymer, right? So this is Buna S, Buna N. N का मतलब होता है एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। एसिटोनाइट्राइल यहाँ पे आएगा, अगर एसिटोनाइट्राइल क्या होता है,
we just have to write CnCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या फिर विनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हो आप. दिस इज गोइंग टू बी एसिटोनाइट्राइल, उल्टा ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, अगर ले लेके एसिटोनाइट्राइल ब्यूना एन बन जाएगा. ठीक है, अब एक फिक्स है ये 1,3 ब्यूटाडाइन वी आर टेकिंग. अब देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, राइट, एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट हियर जस्ट टू मेक बॉन्ड विद दिस. तो ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन पॉलीमर ब्यूरा एस. एडिशन पॉलीमर्स के जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, तो इफ यू आर गोइंग टू सी, बहुत आसान है. पहले हम होमो पॉलीमर देख लेते हैं. तो होमो पॉलीमर में लेट्स से वी आर गोइंग टू टेक इथीन. So then this is going to be, है ना, ये क्या बन रहा है आपका, that is going to form CH2 whole N. So this is going to be polythene. Let's say if I have added here CH2 double bond CH, let's say I have added Cl, so this is CH2 CH Cl, है ना, whole N. So this is vinyl chloride and I am getting polyvinyl chloride. So this is PVC. And if I am going to take, let's say, styrene, so this is going to be polystyrene. Okay. If I am going to take, let's say, CN acetonitrile, then I'm going to form, you can see a similarity over here, right? Just I'm replacing one thing, you know, the different functional group. So this is polyacetonitrile or PAN, you know. If you are going to replace all these hydrogen with fluorine, this is going to be tetrafluoroethene. So this is going to form CF, है ना, मतलब, or you can write like this, CF2. This is, you can write polytetrafluoroethene, right? In short, PTFE, or you can say Teflon. ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे होमो पॉलीमर हो गए, राइट, और बहुत सारे और भी आ सकते हैं, राइट. What are there any conditions? What are there any conditions for polymerization reaction like temperature and pressure condition? Obviously there would be. आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, प्रेशर चाहिए, बट वो हमें याद नहीं रखना भाई, हमें क्या करना है इसमें,
कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर रखना है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कि भाई इंडस्ट्रियली हम बना रहे हैं तो उसमें ईल्ड की बात तो आई जाती है ना। आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का 100% ईल्ड नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कोई जितना अमाउंट लिया वो पूरा का पूरा बन जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे ऑप्टिमाइज, और वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो बोलते एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होती है, जो भी जहाँ पे पॉलीमर के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पहले वो सारा जो भी हमारा जैसे प्लांट है, कितना बड़ा उसका रिएक्शन चैम्बर है, राइट, उसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन को डाल के दैट इज एक्चुअली उसको केमिकल उसमें पढ़ाते हैं कि सब कुछ डाल के एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है सिमुलेशन टाइप की। एंड इफ यू आर गोइंग टू वेरी वन पैरामीटर, अभी एक्सपेरिमेंटली नहीं हो रहा है, ओनली थियोरेटिकली दे मेक इट, and when you are going to change one parameter then other parameter is also going to change, right। उसके कारण yield पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी कैलकुलेशन कर ली जाती है। एंड ये तो क्या है एक्सपेरिमेंटल जो सॉरी थियोरेटिकल है ना, ये सब किया। फिर उसके बाद फिर उसी हिसाब से फिर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि जो हमने लिया था उसमें कहीं हमने जो थियोरेटिकली अज्यूम किया था वो कुछ गलत तो नहीं है। तो दिस दैट्स हाउ द लेट्स से दे आर ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हमेशा। सो नॉट नेसेसरी। Styrene, the pi bonds is in resonance. Yes, it is in resonance. तो नहीं होंगे भाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। ठीक है, तो ये नेम याद रखते हो सकता है आपको यहाँ पे लग रहा हो, राइट, कि इतने सारे नाम है, बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक कनेक्शन मिल जाए। तो यहाँ पे एक कनेक्शन दिख रहा है आपको, राइट, जस्ट चेंजिंग वन हाइड्रोजन Cl, benzene, Cn, and here we have changed all hydrogen, and there are many other. So let's say this is, तो क्या है, इसमें आते हैं कोपॉलीमर्स के एग्जांपल। कोपॉलीमर्स में वी आर गोइंग टू सी, जो रबर वाले हैं वही हम देखेंगे। इसमें एक और लिख सकते हैं हम, राइट, बिफोर वी विल मूव ऑन, दिस इज थोड़ा और लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस गोइंग टू कॉल्ड एज ओवर हियर आइसोप्रीन, ठीक है, इसको बोल रहे हैं। व्हाट विल फॉर्म हियर, ये जब पॉलीमराइज होगा, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, तो इसमें ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट हियर। इस डबल बॉन्ड के अराउंड यू कैन सी द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू कम। तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस। अगर मैं लिखूं CH3 C, आई थिंक ये मैंने गलत बना दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ओके, C, and this is CH2 which is attached like this, then double bond C, then we are having CH2. So if it is going to be cis form, then this is called natural rubber, है ना। cis form होगी तो ये नेचुरल रबर बनेगा। तो ये ऐसे ही, ये देख लो आप, ऐसे चलता जाएगा ये CH2, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर cis form इज नेचुरल रबर। अगर इसी में ट्रांसफॉर्म बन जाती है so then it is not going to be natural rubber. So this is, you have to remember, like this। So it is going to like this। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है पर्चा।
ये भी एक तरह से एक अलग तरह का रबर है, एंड बट आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है नेचुरल रबर क्या है, तो ये है सिस फॉर्म आइसोप्रीन, ठीक है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू लेट्स से डू सम वेरिएशन हियर, है ना, इसमें वी आर गोइंग टू लेट्स से ऐड व्हाट इज द नेम, गुट्टा पर्चा, DUTTAPERCHA, थोड़ा अलग सा नाम है बट यस यही नाम है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। वेरिएशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे Cl डाल देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी क्लोरोप्रीन, going to be chloroprene, एंड इससे जो बनने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही CH2CH सॉरी Cl डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। तो ये भी एक अनदर है ना सिंथेटिक रबर हो गया, अनदर अच्छे रबर फॉर्म है, एंड दैट इज कॉल्ड नियोप्रीन। हो जाओ तो अब ये मैं जैसे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आगे आने वाले हैं धीरे धीरे, मैंने अभी बताया, अब आप आगे आएंगे तो फिर आपको वो रिकॉल हो पाएगा, ठीक है। तो एनीवे लेट्स से नाउ मूव ऑन, ठीक है। तो दीज आर लेट्स से नेम्स आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आपको होमोपॉलीमर के इतने सारे मोनोमर और इनके पॉलीमर मिल गए। तो इथीन से पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन, एसीटोनाइट्राइल से पॉलीएसीटोनाइट्राइल, टेट्राफ्लोरोइथीन से ये टेफ्लॉन, आइसोप्रीन से नेचुरल रबर एंड क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना, ठीक है। नाउ दिस इज ओनली लेट्स से होमोमर। तो अगर हम बात करेंगे कोपॉलीमर की, so we are going to have butadiene and styrene, that is butadiene। सिमिलरली अगर ब्यूटाडाइन प्लस एसीटोनाइट्राइल होगा, ये मैं बता चुका हूँ, राइट, देन दिस इज गोइंग टू फॉर्म ब्यूनाइन, ऐसे आप देख सकते हो। तो ये कोपॉलीमर के टाइप होगा। चलते हैं आगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। Condensation polymer are formed by repeated condensation reaction between two different functional group or trifunctional monomeric units. In these polymerization reactions, the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride, etc. takes place. Okay? So elimination of small molecules takes place. Examples are Trilene, nylon 66, nylon 6, etc. For example, nylon 66 is formed by condensation of हेक्सामिथाइलिन डायमाइन विद एडिपिक एसिड। ये हम रिएक्शन पहले ही देख चुके हैं। यहाँ जो टर्म यूज हुआ है टेरिलीन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो टेरिलीन इज नथिंग बट सो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में अगर मैं बात करूंगा होमोपॉलीमर की, तो वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन एग्जांपल, दैट इज नाइलॉन 6। दैट इज ओवर हियर नाइलॉन 6 का क्या होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में देखोगे ये आगे आएगा, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मोनोमर है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चंस में, तो बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, सुन रखा हो पहले। अगर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
दिस इज लाइक स्ट्रेट। तो 7 मेंबर रिंग है, इसको ब्रेक करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी इसकी, दिस इज गोइंग टू बी COOH CH2 होल 5 NH2। ये दूसरे वाले से ऐड होगा तो क्या होगा, दूसरे वाले का COOH है ना, अदर लेट्स से यूनिट, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अमाइड लिंकेज। So then this compound is going to be like this, CH2 whole 5 NH. So this whole N, this is called nylon 6, क्योंकि इसमें एक ही यूनिट है बस, कितने कार्बन है इस मोनोमर में, 6, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 ये सब कहाँ यूज होते हैं, फाइबर्स में, थ्रेड बनाने के काम आते हैं। आपने देखा हुआ नाइलॉन सॉक्स आते थे, राइट, नाइलॉन आपने यूज किया हुआ है, so that is let's say use। now we are having होमो के बाद कोपॉलीमर, कोपॉलीमर के एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएंगे, we are going to have let's say, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, ये सुना है थैलिक एसिड, यस, नियोप्रीन में सिस और ट्रांस नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर ये अगर COOH इधर आ जाए तो इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, सॉरी हाँ टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। और ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपने ये तो देखा ही होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन बनाती है एस्टर, इनमें क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। एंड दिस इज एस्टर, और इसको बोलते हैं, ये क्या है, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर सुना है नाम, राइट ना, कपड़े में यूज होता है पॉलीएस्टर, बोलते हैं ना कपड़ा पॉलीएस्टर का, राइट। तो दिस इज पॉलीएस्टर, ये बन गया, इसको बोलते हैं टेरिलीन, नाम याद रखना है, टेरिथैलिक एसिड टेरिलीन, और इसको कहते हैं डेक्रॉन, कॉमर्शियल नेम है डेक्रॉन। चलते हैं आगे। तो मैंने आपको नाइलॉन 6 पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिखा है टेरिलीन डेक्रॉन, ये नाइलॉन 6 बता दिया, राइट, ओके, चलते हैं आगे। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मासेस और मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। कोपॉलीमर के और एग्जांपल हैं, ये एक तो ये है हो ही गया, इसके अलावा अगर मैं पॉलीअमाइड्स के एग्जांपल लिखूंगा तो है ना, नाइलॉन 6 आ जाएगा, मैं पहले ही लिख चुका हूँ। फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जांपल लिखूंगा, मान लो इसमें आपका आ जाएगा बेकेलाइट, वो भी मैं बता चुका हूँ, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब, ठीक है। तो लाइक दिस इज गोइंग टू फॉर्म, जो मेलामाइन में मैं बोल रहा था वैसे ही यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में है ना, CONH2 NH2 एंड फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, क्या होगा, एक H डबल बॉन्ड हो, एक H दूसरे वाले से निकालते जाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये सब क्रॉस, एक बड़ा सा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बनेंगे। चलते हैं आगे। A large number of polymer application in different field depends on their unique mechanical properties like tensile strength, elasticity, toughness. ये सारी बातें किस बात पे डिपेंड करेंगी कि इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, हाउ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज बिटवीन दीज
these let's say chain है ना, ये जो थ्रेड बन रहे हैं पॉलीमरिक चेन बन रही है, उनमें अगर इंटरेक्शन कैसा है, तो अगर उनमें वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है, वीक वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है, क्या हो जाएगा वो इलास्टोमर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इलास्टोमर। इलास्टोमर के एग्जांपल क्या आ गए, राइट, these are rubbers, अभी इसमें आगे आएंगे। so let's say these mechanical properties are governed by intermolecular forces like van der Waals force, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या है, पॉलीएस्टर एस्टर है ना, या फिर अमाइड है ना, पॉलीअमाइड, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन होंगे प्रेजेंट इन पॉलीमर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। These forces are bind the polymeric chain under this category. The polymer are classified into the 4 subgroups in the basis of magnitude of intermolecular forces present in them, ठीक है। पहला इलास्टोमर, so these are rubbers like solid with elastic property। इलास्टोमर का मतलब ही क्या है, इनमें क्या होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। In these elastomeric है ना, elastomeric polymer, the polymeric chain are held together by the weakest intermolecular forces, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे वीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। These weak binding force permit the polymer to be stretched. A few cross links are introduced in between in the chain, which helps the polymer to retract its original position after the force is released, as in vulcanized rubber. The examples are Buna S, Buna N, नियोप्रीन है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्लोरोप्रीन उसका मोनोमर है, नियोप्रीन पॉलीमर का नाम है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट, इलास्टोमर का मतलब हुआ ऑल टाइप्स ऑफ रबर है ना, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर्स आर गोइंग टू बी इलास्टोमर, ठीक है। तो इलास्टोमेरिक पॉलीमर में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज वॉन डेर वाल फोर्स। एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट फाइबर, सेकंड फाइबर से आपको समझ में आ गया, पॉलिएस्टर आएगा इसमें, तो और नायलॉन पॉलीमाइड्स आएंगे। फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड व्हिच पॉसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फाइबर है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव forces are present because of hydrogen bonding, तो फिर क्या होगा, they are going to have high tensile strength. This characteristic can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding, नहीं इलास्टिसिटी के बारे में नहीं है, हाई मॉड्यूलस आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ, लेट्स से वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ही कुछ रिलेटेड होगा, स्ट्रेंथ से रिलेटेड है आई थिंक, ओके। जस्ट गेट द सेंस कि हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर होगा, okay. So these strong forces are lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature. So this is the important thing, भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसमें क्रिस्टलाइन नेचर आ रहा है ना, राइट। The examples of polyamides are nylon 66, polyester. So all these are, you can write polyamide and polyester. Okay. Thermoplastic. So these are the linear or slightly branched long chain molecules of repeatedly softening or heating. Oh, sorry, capable of repeatedly softening or heating. तो ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग पे, और जब कूल हो जाएंगे फिर से तो फिर हार्ड हो जाएंगे, है ना, hardening on cooling. These polymer possess intermolecular force of attraction intermediate between elastomer and fiber, ठीक है। अगर मेरे को इनमें अगर ऑर्डर देखना होगा तो सबसे वीकेस्ट कहाँ पे, इलास्टोमर, फिर कौन है, थर्मोप्लास्टिक, फिर कौन है, फाइबर, एंड फिर कौन है, थर्मोसेटिंग।
ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या लग रहा है। सबसे ज्यादा हाई किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रेक करना किसको होगा, थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो ये क्या लिखा हुआ है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स। तो ये क्या हो गए, राइट, यू कैन रिमेम्बर लाइक हियर ना, ये जो हमने बनाए हैं ना, होमोपॉलीमर ना, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, ये सब पॉलीस्टाइरीन, ये सब क्या हो गया आपके सारे, है ना, इथीन और इथीन डेरिवेटिव, ये सब आ गए आपके थर्मोप्लास्टिक। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ये सब क्या हो गए, है ना, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, ऑल दीज आर गोइंग टू बी इलास्टोमर। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हमने अमाइड लिंकेज, पॉलीएस्टर लिंकेज बनाई हुई है, तो पॉलीअमाइड लिंकेज बनाई हुई है, ये सब क्या हो गए, फाइबर्स। और लास्ट में जो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इनको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिक। आगे आ रहा है नेक्स्ट, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स में क्या हो रहा है, दे आर गोइंग टू हैव कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू, लेट्स से, यूनिट्स। जो भी बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ फिजिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर, काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। These polymer are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergoes extensive cross-linking in moles and again become infusible। ठीक है, ये एक बार जब यूज करे जाते हैं तो दोबारा यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनफ्यूजिबल बन जाते हैं, मतलब फिर से मेल्ट नहीं होंगे, इनफ्यूजिबल। दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड। some common examples are bakelite, urea formaldehyde resins, etc। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये क्या है, इथीन डेरिवेटिव्स, जैसे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट किसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, चेन के, है ना, चेन के। और किस बात पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बॉन्ड कौन सा तोड़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है डायमंड, ठीक है, इसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है। कार्बन से ही एक कंपाउंड बना हुआ है CO2, जो कि गैस है, ठीक है। या फिर कार्बन कार्बन के, ये हाइड्रोकार्बन है, मान लो ये डायमंड है, हाइड्रोकार्बन ले लो, लेट्स से यू कैन टेक पेट्रोल, है ना, ऑक्टेन ले लिया, C8H18, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन ये लिक्विड है। इसका तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 4000 केल्विन के आसपास है, ठीक है, 3900 समथिंग। हाँ बताओ, समझाता हूँ। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या समझ में आया वो बताओ ना मुझे भी। तो भाई यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ये यूनिट है, ये पूरा है ना, मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा ऐसा C8H18, इनके बीच में लग रहा है वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ डायमंड में क्या लग रहा है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, हर एक कार्बन में किसी डायरेक्शन में चले जाओ, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बॉन्ड तोड़ना है, तो यहाँ बॉन्ड तोड़ना है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
You just have to break this van der Waals attraction force. यहाँ बॉन्ड तोड़ना है, you have to break कोवेलेंट बॉन्ड. इसीलिए यहाँ पे जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन जा रहा है वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे. अब श्रेया का क्वेश्चन ये है कि सर बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल क्यों लेने हैं, क्योंकि तभी तो बनेंगे ये बॉन्ड इनके बीच में एक्सटेंसिवली, है ना. दो आपने लिंकेज देखी हुई है आपने, है ना, कैसे बनते हैं क्रॉस लिंक्ड. तो आपको चाहिए कुछ, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कुछ निकलेगा, फिर ऐसे बनेगा. तो जब तक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे तो इनमें लिंकेज नहीं हो पाएगा. Addition and condensation polymer nowadays also referred as chain growth polymer and step growth polymer. इसका क्या मतलब है? अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन को क्या बोल सकते हैं हम? एक मिनट आगे है ना, इधर ये यहाँ पे. तो chain growth polymerization mechanism undergo during this formation. ठीक है. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरफ से आपने चेन स्टार्ट की ग्रो करना, और ये जैसे मान लो ये मोनोमर्स हैं, ठीक है, और इनको आप कनेक्ट करते गए तो चेन एकदम एक सीक्वेंस में ग्रो हो रही है, चेन ग्रोथ. ठीक है, राइट. दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इन वन डायरेक्शन. ऐसे स्टेप ग्रोथ क्या होता है, ये दो मोनोमर हैं, इसमें साइमल्टेनियसली इसने इससे बॉन्ड बना लिया, इसने इससे बॉन्ड बना लिया, और फिर धीरे धीरे ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. स्टेप ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप, है ना. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट एक सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, एक तरफ एक चेन भी ग्रो कर रही है, कहीं पे भी इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन गए. ठीक है, राइट. ठीक है, ऐसे इधर बॉन्ड बन गया. ठीक है, स्टेप ग्रोथ समझ में आया. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज एडिलीन एंड डेकोरन आर सेम. तो ये याद रखने नेम बस. एडिशन पॉलीमराइजेशन इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. In this type of polymerization, a molecule of same monomer or different monomer are added together to form a large scale of polymer. The monomer used are unsaturated compounds like alkenes, alkynes, and their derivatives. This mode of polymerization leading to a increase in chain length or chain growth and takes place through the formation of either free radical or ionic species. Free radical mechanism और ionic species का मतलब है either cationic और anionic mechanism. However, the free radical govern addition and chain growth polymerization in most common mode. अब ये थोड़ा मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं यहाँ पे. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है मेनली, बट यू कैन आल्सो हैव कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म. उसमें जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो क्या चाहिए होगा, in case of free radical mechanism you need a initiator जिसके कारण ये रिएक्शन हो जाए. तो इनिशिएटर इज गोइंग टू बी पेरोक्साइड प्लस एच न्यू. ये पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है ना. यू कैन टेक बेंजोइल पेरोक्साइड, कुछ भी ले लो, ये पेरोक्साइड बस सीधा समझ लो कि ये पेरोक्साइड, दिस इज गोइंग टू बी इनिशिएटर. बस एक बार आपने ये डाला पेरोक्साइड के साथ, आपको क्या बनेगा, OR फ्री रेडिकल बनेगा. दैट इज गोइंग टू लेट्स से इनिशिएट द रिएक्शन. आई एम नॉट टेलिंग यू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आई होप कि यू नो. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी और वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन लगातार आगे, है ना, पास ऑन होती जाएगी. तो लेट्स से अगर मैं बात करूं ROOR, लेट्स से थोड़ा बता देते हैं. So this is the bond which is going to break in H nu. So this is going to be 2RO free radical, and now this RO free radical is going to combine with let's say ethene. तो ये इसके साथ let's say अटैच हुआ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. So this is going to be ROCH2 free radical. अब ये नया हो गया. So now what will happen? This free radical is going to attach to another let's say
इथीन, ये जब इससे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता जाएगा, तो इस तरह से ये आगे से चेन ग्रो करने लग जाएगी। Obviously in this case, है ना, in this case there is always a chances or always some chances are there कि यहाँ पे, है ना, ये जो हम चेन ग्रो करा रहे हैं वो लीनियर के साथ साथ ब्रांच भी होती जाए बीच बीच में, कहीं पे क्या हुआ, दो चीजें कंडेंस हो गई, है ना, तो देयर इज ऑलवेज सम टर्मिनेशन स्टेप्स आर हैपनिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट छोटी यूनिट यहाँ टर्मिनेट हो गई मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये आपकी क्या कहते हैं एल्केन की चेन है, तो एल्केन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इजी होता है, so that's why something, let's say some part you can understand there is always susceptibility, these polythene are going to have some branching, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ जो पॉलीथीन बनती है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो एल्कीन बनेगी, सॉरी जो पॉलीथीन बनेगी, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब अगर बात हम करें आयनिक मैकेनिज्म की, आयनिक मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म में यू कैन टेक कैटायन, कैटायनिक मैकेनिज्म, जैसे अगर कहीं पे ये पॉलीस्टाइरीन है, राइट, हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है और कैटायनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है। सिंपली जस्ट यू नीड टू हैव सम H प्लस, कुछ ऐसा जिससे ये कैटायन बन जाए, तो इफ यू आर गोइंग टू सी देन दिस इज गोइंग टू बी, है ना, H प्लस, और इस H प्लस का सोर्स हो सकता है बहुत सारे HCl, H2SO4 लाइक दैट, तो H2SO4 ज्यादा बेटर सोर्स है बिकॉज उसका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH3 CH प्लस, ठीक है। Now this plus going to be attacked by another, ये एल्कीन है, ये क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी, राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन पॉलीमराइज। ये कैटायनिक मैकेनिज्म हो गई, मेनली आपको चाहिए कैटायन फॉर्मेशन के लिए कुछ, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, एनायनिक मैकेनिज्म में हम लेते हैं जैसे RMGX, RLI, ऐसा कुछ लेते हैं जो एक H निकाल के जा सके। जैसे अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CN, CN, right, तो इफ यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, मतलब मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ RMGX की, इट इज गोइंग टू लेट्स से रिमूव दिस हाइड्रोजन, जहां पे कार्बेनाइन स्टेबल बन रहा हो, ये कार्बेनाइन स्टेबल बन रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस CN ग्रुप, ये क्या होगा, ये कार्बेनाइन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन अनदर, तो इफ इट इज गोइंग टू अटैक हियर तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये एनायनिक मैकेनिज्म चलती जाएगी, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटर हैं, आपको इनिशिएटर याद रखने हैं मैकेनिज्म के लिए। कैटायनिक मैकेनिज्म है, कैटायन बनाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल बनाएगा, लाइक दिस। चलते हैं आगे। वैरायटी ऑफ एल्कीन और डाइन्स, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा समझा रहे हैं। Variety of alkenes and dienes and their derivatives are polymerized in the presence of free radical generating initiator like benzoyl peroxide, acetyl peroxide, tertiary butyl peroxide, कोई भी peroxide ले लो। For example, the polymerization of ethene to polyethene consists of heating or exposing to light a mixture of ethene and a small amount of benzoyl peroxide initiator. The process starts with the addition of phenyl radical, है ना, phenyl free radical formed by peroxide to form ethene double bond। ये नीचे शायद दे रखा है ना ये रिएक्शन, देख लो, ये पहले OR फ्री रेडिकल बना, राइट, अब ये OR फ्री रेडिकल यहाँ पे तो खैर ये इन्होंने OCO फ्री रेडिकल दिया है तो CO2 निकल जाएगा,
अगर केवल OR फ्री रेडिकल रहेगा तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो ये बेंजोइल पेरोक्साइड की जगह ऐसा होता C6H5O O, right, not this, then we are going to have C2H5, let's say. तो जब ये टूटेगा तो यहाँ O C2H5 O फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ O2 नहीं निकलेगा, ओके, तो बी केयरफुल, डजंट मैटर यहाँ पे ये O फ्री रेडिकल या नॉर्मल है, यहाँ पे CO2 फ्री रेडिकल है तो CO2 निकल सकता है, बस इतना ही है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म, ये क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहे हैं, ये इस पे अटैक किया, ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट हुआ, फिर ऐसे ये आगे रिएक्शन शिफ्ट होती गई। CO2 जब भी ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपने उसमें देखा होगा ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था ना, RC डबल बॉन्ड O होता था, है ना, RC डबल बॉन्ड O, राइट। तो या फिर आपने देखा होगा कि इसमें हंस-डिकर रिएक्शन में, डिकर रिएक्शन में ये Br ये बॉन्ड ब्रेक होता था तो RCO फ्री रेडिकल बनता था, फिर ये CO2 निकल के R फ्री रेडिकल बन जाता था, R फ्री रेडिकल Br के साथ फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके RBr बना लेता था, रिमेंबर। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ऐसे CO2 निकाल दिया क्योंकि CO2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ ये फिर वही रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई थी, ये इस पे अटैक करेगा, फिर यहाँ फ्री रेडिकल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये चेन ग्रोथ हो रही है, दिख रही है आपको। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, फॉर टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन these free radicals can combine in different way to form polythene, one mode of termination is shown, ये आपस में ऐड हो गए, ऐसा करके कुछ बन गया। Now preparation of some important addition polymer, अब इन्होंने एग्जांपल में ले लिया पॉलीथीन। There are two types of polythene, first is low density polythene, ये low density polythene किससे बनेगी, free radical mechanism। It is obtained by polymerization of ethene under high pressure, this not required temperature, this in the presence of traces of dioxygen and peroxide initiator. A low density polythene obtained through the free radical addition, hydrogen abstraction as highly branched structure, तो इससे क्या होगा, highly branched structure बन रहा है। Low density polythene is chemically inert, tough but flexible, a poor conductor of electricity, hence it is used in the insulation of electricity carrying wire and manufacturing of squeeze bottles, toys, flexible pipes, तो ये हो गया, ठीक है, low density polythene। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आपको याद रखना है कैटलिस्ट डिग्लर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। डिग्लर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, TiCl4 plus AlOC2H5 whole thrice, or you can say TiCl4 plus AlOCH3 whole thrice, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ, अगर नहीं तो यहाँ पे है ना, I have told you this in coordination compound, I think, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये TiCl4 के साथ इथीन जो एल्कीन होती है वो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, थोड़ी सी डिफरेंट मैकेनिज्म है, राइट। इथीन इसके साथ बनाएगी तो यहाँ पे एक चांसेस ये, और जो ब्रांचिंग का चांस होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि लगातार इसमें ऐसे इथीन जुड़ती जाएगी। So that is, let's say, mechanism. It is found when addition polymerization of ethene takes place in hydrocarbon solvent in the presence of catalysts such as diethyl aluminum. I think O nahi hai, sorry, I made a mistake. So there is diethyl aluminum. Okay, there's no O. And titanium tetrachloride. Digley-Natta catalyst at a temperature of about 330 Kelvin to 343 Kelvin and a pressure of 6 to 7 atmosphere. High density polythene are thus formed. The seed consists of linear molecules, has a high density, close packing, okay. Also chemically inert, more tougher and harder. तो यहाँ पे difference क्या है? That is more tougher and harder. It is used for manufacturing of bucket, dustbin, bottles, pipes, etc.
तो यहाँ पे डिफरेंस आपको याद रखना है, जो आपके लिए याद रखने वाला है वो ये है, लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हाई डेंसिटी पॉलीथीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अनदर एग्जांपल है ना, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन टेफ्लॉन। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट्स का ब्रेक है, फिर मिलते हैं। Okay, so let's say what we have to do polytetrafluoroethene. Okay, so okay. So Teflon is manufactured by heating tetrafluoroethene with a free radical and sulfate catalyst at high temperature. It is chemically inert, resistant to attack by corrosive reagent. It is used in making oil seals, gasket, and also used for non-sticky surface coated utensils. So इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है Teflon coating undergoes decomposition at temperature above 300 degree Celsius. So this is what we are saying कि अगर आप coating, let's say coated utensil use कर रहे हो non-sticky, तो वो फ्राई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए नहीं है, because in that sense the coating is going to remove or that is very harmful for our health. So next, polyacrylonitrile addition polymerization of acrylonitrile in the presence of peroxide catalyst lead to formation of polyacrylonitrile. ठीक है, so it is substitute for wool in making commercial fibers as Orlon and ये एक नाम इसका Orlon भी आता है ना कमर्शियल नेम में। ये एक्राइलन इतना फेमस नहीं है, Orlon, एक्राइलो से आप एक्राइलन याद रख सकते हो, तो Orlon याद रखना। डेक्रॉन, ऑर्लन, टेफ्लॉन है ना, अलग अलग है। डेक्रॉन टेरिलीन, टेफ्लॉन ये आपका टेट्राफ्लोरो ईथीन है ना, पॉली टेट्राफ्लोरो ईथीन टेफ्लॉन, एंड दिस एक्राइलोनाइट्राइल PAN दैट इज ऑर्लॉन है ना, तो ये याद रखना PAN और ऑर्लॉन। चलो नेक्स्ट है कंडेंसेशन polymerization or step growth polymerization. This type of polymerization generally involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers. These polycondensation reaction may result in loss of some simple molecule like water, ये बात हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, and lead to formation of high molecular mass condensation polymer, ठीक है। In this reaction, the product of each step is again a bifunctional species, and sequence of condensation goes on. Since each step produces a distinct functionalized species, it is a independent of each other. So this is what I have said. Independently, this can grow, and this process is also called as step growth polymerization. The formation of pteryline or decaron by the interaction of ethylene glycol and terephthalic acid is an example of this type of polymerization. Okay, we have seen this part. Example देख लो आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके H और इसके OH को निकाल देंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे एक O मिसिंग है, ठीक है, ओके, जस्ट वन O इज मिसिंग, एस्टर लिंकेज हो रहा है ना, तो ये मिसिंग टेरिलीन और डेक्रोन। Now, some important condensation polymerization reaction characterized by linking units are described below, ठीक है। Polyamide, तो polyamide में nylon 6,6 we have seen है ना, इसको याद रखना। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, कभी कभी मोनोमर पूछते हैं, हेक्सामिथाइलिन, ये सॉरी ये वाला हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, एंड दिस इज एडिपिक एसिड, ओके, वी हैव सीन दिस। नायलॉन 6 भी हमने देख लिया, कैप्रोलैक्टम ये ओपन होगा और फिर ऐसे एडिशन पॉलीमराइजेशन, सॉरी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आ जाएगा।
So nylon 6 is used for manufacturing of tire cords, fabrics, ropes. Okay, polyester. So these are polycondensation products of dicarboxylic acid and thiols. We have already seen. Polyester का एक example terylene. Dacron terylene is the best known example of polyester. It is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol, terephthalic acid, in presence of zinc acetate, antimony trioxide catalyst. And as per the reaction given earlier, Dacron fiber is crease resistant and is used in blending with cotton and wool fibers and also as a glass reinforcing material in safety helmets like this. So okay, what they are trying to say कि भाई ये थोड़ा सा क्रीज रेजिस्टेंट है तो इसके लिए ब्लेंड कर देते हैं कॉटन में, तो कॉटन के साथ अगर आप देखोगे कॉटन पे जल्दी से क्रीज बनती है ना, राइट, जल्दी से, so that's why if you are going to add तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखेगा अच्छा, राइट, क्रीज नहीं बनेगा. So that's what they are saying and this is also reinforcing material obviously, है ना. तो अगर हम इसमें let's say डेक्रोन डाल देते हैं तो this is nothing but polyester, तो स्ट्रेंथ आ रही है फाइबर के कारण, that's why they are saying safety helmet में हम यूज करें. चलो आगे. Phenol formaldehyde polymer bakelite and related polymer. Phenol formaldehyde polymer are oldest synthetic polymers. These are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or base catalyst. Okay. This reaction will start with the initial formation of ortho and para hydroxy methyl phenol derivative, है ना, ऐसा कुछ बन गया, या तो either ortho or ortho para derivative, which further reacts with phenol to form compounds having ring joined to each other through CH2 group. Initial product could be a linear product that is called Novolec, and Novolec used in. तो ये जब ऐसा लीनियर केवल एक ही चेन एक ही डायरेक्शन में बन रही है, एक ही चेन है ये, so this is going to be Novolec linear chain. Novolec on heating with formaldehyde undergoes cross linking to form an infusible solid mass called bakelite. ऐसा बन गया. It is used for making combs, phonograph, records, electrical switches, handles of various utensils. Melamine. Melamine formaldehyde polymer. Melamine formaldehyde is by condensation of this melamine and formaldehyde. Remember कि ये एक हाइड्रोजन जाएगा, पहले OH बनेगा, फिर दूसरे वाले से ये हम निकाल सकते हैं. So I think you can see here, है ना, we have CH2. इसका एक हाइड्रोजन निकल गया है ना, ये जो यूनिट इधर आएगी वैसे ही है. So it is used for manufacturing of unbreakable crockery. ये याद रख सकते हो आप, unbreakable crockery के लिए we are using melamine formaldehyde. That's it. Polymer. Next है copolymerization. Now copolymerization is polymerization. ये बात point हम लिख चुके हैं, फिर भी दोबारा आया है ये, वो देखते हैं. In which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. The copolymer can be made not only by chain growth polymerization but by step growth polymerization also. ठीक है. Copolymerization का मतलब सिंपल यही है कि we are going to have two different monomer. ठीक है. Chain growth polymerization का मतलब क्या है? Addition. Step growth polymerization का मतलब क्या है? Condensation. It contains multiple unit of each monomer used in same polymeric chain. For example, 1,3 butadiene and styrene can also form polymer. Copolymers have properties quite different from homopolymer. For example, butadiene styrene copolymer is a good substitute for natural rubber. ठीक है. केवल अगर हम CH3 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का कंडेंसेशन से मिलेगा, होमोपॉलीमर के कंडेंसेशन से मिलेगा नेचुरल रबर. दे आर सेइंग कि इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर है. It is used for manufacturing of auto tires, floor tile, footwear, है ना. Just one second.
ओके, फ्रॉम सर ये सारे थर्मोसेटिंग इंसुलेटर जैसे भी यूज कर सकते हैं ना। इंसुलेटर तो जनरली कनेक्टिविटी के हिसाब से है, तो अगर जहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, राइट, हाँ ये भी यूज हो सकते हैं, बट उसका उसके लिए वो ये भी देखेंगे कि जैसे मान लो हम पॉलीथीन की बात कर रहे थे, तो पॉलीथीन भी एक तरह से इंसुलेटर की तरह यूज हो रही है, वायर्स में चढ़ के यूज हो रही है, ठीक है। इंसुलेटर इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग इनका यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा, और क्या डाउट है? लीनियर चेन मीन्स होमोपॉलीमर है, स्टेप अप ग्रोथ पॉलीमर एक, नहीं 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 नहीं, ऐसा याद मत रखो, अलग अलग क्राइटेरिया है ना। होमोपॉलीमर का मतलब है एक मोनोमर, कोपॉलीमर मतलब डबल। अब ये दोनों में हो सकते हैं, एडिशन में भी हो सकते हैं और कंडेंसेशन में भी हो सकते हैं, यही हमने आगे पहले लिखाया है, राइट। हो सकता है तुम्हें नींद आ गई हो, शुरुआत में ये लिखा है ना, होमोपॉलीमर फिर कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, राइट, फिर होमोपॉलीमर फिर कोपॉलीमर, राइट। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोपॉलीमराइजेशन। तो ठीक है, नेचुरल रबर, अब हम रबर पे आ गए, राइट। तो रबर इज द नेचुरल पॉलीमर and possessed elastic property. It is also termed as elastomer, ठीक है। तो सारे इलास्टोमर क्या है, रबर और सिंथेटिक रबर्स हैं। Has a variety of uses. It is manufactured from rubber latex, which is a colloidal dispersion of rubber in water. This latex is obtained from the bark of rubber tree found in India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, South America. Natural rubber may be considered as a linear polymer of isoprene, that is nothing but 2-methyl 1,3 di sorry 1,3 butadiene, also called as cis, है ना, तो यहाँ पे important बात है cis 1,4 polyisoprene, ठीक है। Now that's, so they have given like this. Just remember both this, है ना, bulky or chain is going to be same side. That's it. That's the only thing you have to consider for cis. Monomer isoprene, right? The cis polyisoprene molecule consists of various chains held together by weak van der Waals interaction, has a coiled structure, thus can be stretched like spring and exhibit elastic property. तो ये कह रहे हैं कि ये coil की तरह होता है, तो आप खींच सकते हो, contract भी हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है। Vulcanization of rubber, it's important, ये बहुत important, इस पे एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है। Natural rubber becomes soft at high temperature. तो नेचुरल रबर की जो प्रॉब्लम है, जो उससे बन रहा है रबर की लेटेक्स है, दैट इज बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। तो मतलब 60 डिग्री, ये कितना होगा 35 और 27, हाँ लगभग 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, ये क्या होने लग जाएगा, सॉफ्ट होने लग जाएगा। सॉफ्ट होगा तो फिर मतलब अगर टायर वायर के टर्म्स में देखें तो घिसेंगे भी। तो आपने अगर कभी देखा होगा, है ना, कि अभी तो आते नहीं, पुराने टाइम पे आते थे थोड़े खराब क्वालिटी के टायर, तो वो अगर आप बहुत, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेक ब्रेक लगाते हैं ना, तो एकदम से गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाओगे तो एकदम फ्रिक्शन लगता है, और इसके कारण वो थोड़ा टेम्परेचर उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी टायर जो मार्क्स है वो आपको दिखने लग जाएंगे, राइट, एकदम से। तो दैट इज, बट वी वांट कि हम चाहते हैं कि और प्रॉपर्टी बेटर हो, तो हम जस्ट ट्राइंग टू से कि सॉफ्ट होने के कारण प्रॉब्लम क्या होगा, डिग्रेड जल्दी होगा। कोई भी टायर वगैरह है, रबड़ है, दैट इज गोइंग टू डिग्रेड फास्टर, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्रिटल लो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर गया तो उसमें क्रैक्स जल्दी पड़ सकते हैं, ब्रिटल, है ना।
एंड शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो ये याद रखना है। नेचुरल रबर शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसका मतलब ये नहीं कि सोक कर लेगा, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सारे के कंपैरिजन में उसमें वाटर का कंटेंट हो सकता है, वाटर कैन बी लेट्स से अब्सॉर्ब। इट इज soluble in non-polar solvents like non-polar solvents and is resistant to attack by oxidizing agent. So इसमें problems क्या क्या हैं? That is become soft at become soft at temperature more than 335 Kelvin, है ना? Become brittle at temperature lower than 283 Kelvin, है ना? High water absorption capacity, दिस इज फॉर नेचुरल रबर की बात हो रही है, नॉट वल्कनाइज्ड, है ना, नेचुरल रबर। एंड दिस इज गोइंग टू बी अटैक्ड बाय oxidizing agents soluble in non-polar solvent. So you want to improve these, let's say these things जो हैं, तो अगर Harshit is saying कि why is solubility in non-polar solvent and undesirable properties for rubber, रबर का यूज हमेशा टायर में ही नहीं है ना, और भी जैसे जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। मान लो हो सकता है कोई आपका पर्टिकुलर लेट्स से कुछ मोल्ड टाइप का बनाने के लिए, या फिर कहीं पे लेट्स से किसी केमिकल किसी कोई कंटेनर बनाने के लिए लेट्स से, राइट, उसमें आप यूज कर रहे हो लेट्स से, ठीक है, एंड देन दिस इज गोइंग टू लेट्स से क्रिएट प्रॉब्लम। So to improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out, ठीक है, so this is important, हम इसको improve करने के लिए कर रहे हैं, राइट। वल्कनाइजेशन का मतलब है क्रॉस लिंकिंग, सल्फर को उसमें डाल रहे हैं तो दैट बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी क्रॉस लिंकिंग, दैट इज वल्कनाइजेशन। दिस इज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद sulfur and appropriate additive at a temperature ranging between 373 Kelvin to 415 Kelvin. On vulcanization, sulfur forms cross links at a reactive sites of the double bond and thus rubber gets stiffened. तो अब यहाँ पे ये जो बात समझने वाली ये है कि इनके बीच में ये सल्फर आ गया तो जो इंटरेक्शन या स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई, राइट, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्सेस आने लग गए, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनने लग गया, तो ये ब्रांच ना होके ये एक तरह से क्रॉस लिंक्ड हो गया, है ना, दो इनके बीच में सल्फर आ गया, एंड इसके कारण इट गेट्स स्टिफेंड। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर 5% sulfur is used as a cross linking agent. The probable structure of vulcanized rubber are depicted below. ये एक चेन थी, ये एक चेन थी, इनके बीच में ये ऐसे synthetic rubber. Synthetic rubber is any vulcanized rubber like polymer which is capable of getting stretched to twice its length, however it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is released. Okay, thus synthetic rubber are either homopolymer of 1,3 butadiene derivative or copolymer of 1,3 butadiene or its derivative with another saturated monomer, unsaturated monomer. So we have seen, है ना, buna-S, buna-N, all these, and neoprene, right? So preparation of synthetic rubber के example है neoprene, याद रखना है इसमें मोनोमर है, बिल्कुल आप ये बात ध्यान रखना, isoprene is monomer, है ना, और natural rubber, नियोप्रीन इज पॉलीमर, बच्चे भूल जाते हैं, नियोप्रीन को मोनोमर ही ले लेते हैं, आइसोनियो, है ना, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसका मोनोमर क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज हुआ, नियोप्रीन बन गया, ठीक है। फिर ये ब्यूनाइन मैंने बता दिया आपको, ब्यूनाइस आगे ही देख चुके हैं, बस खत्म हो गया ये चैप्टर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर
polymer properties are closely related to their molecular masses, size, and structure. The growth of polymer chain during the synthesis is dependent upon the availability of monomer in reaction mixture. Thus, the polymer sample contains chain of varying length. Yeah, it doesn't matter. अब आती है बात, कुछ याद रखने हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये हम समझते हैं कि जितने भी पॉलीथीन वगैरह हैं या फिर बहुत सारे पॉलीमर ऐसे हैं जो आसानी से अपने एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट पॉल्यूशन। अब हम चाहते हैं कि हम और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम यूज कर सकें, राइट? तो पॉलीथीन का यूज कम हो, तो दैट इज व्हाई दिस इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इस नाम को मैं तोड़ देता हूँ। इसमें दो चीजें हैं, एक है बेलरेट और एक है ब्यूटाइरेट। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज बेलरिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड होता है 4 कार्बन का एसिड, जैसे फॉर्म है ना, फॉर्मिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, राइट, प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे ही ब्यूटायरिक एसिड। तो CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2 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 COOH हो गया आपका ब्यूटायरिक एसिड, राइट। इस ब्यूटारिक एसिड में हम लिख लेंगे ये फर्स्ट, ये किस COOH ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन अल्फा बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो OH, तो ये आ गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। नाउ वी आर गोइंग टू राइट बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 COOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, आप देख सकते हो ये एसिड और ये OH एक्स्ट्रा लिंकेज बना सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू है ना, ये OH दूसरे वाले से बनाएगा, तो देयर इज गोइंग टू बी, तो हम एस्टर बनाते हैं तो फिर क्या आता है? सफिक्स 8, दैट्स व्हाई ब्यूटारिक एसिड हैज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटायरेट और बेलेरिक एसिड हैज कन्वर्टेड इनटू बेलेरेट, राइट? so that's how the name is poly, है ना, ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बेलेरेट ऐसे लिखा हुआ है ये PHBB। It is obtained by co-polymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। ये इनके UPSC नेम है, बट यहाँ पे हम नाम समझ रहे हैं ये ब्यूटायरेट और बेलेरेट से। Now what is going to happen, ये OH इसके इस OH से अट्रैक्ट कर लेगा, so just see here, है ना, इसका OH मतलब इसका H COOH वाले नेक्स्ट से करेगा, राइट? यहाँ पे केवल H। So this is going to be ester linkage, so just see closely. You want to write, so ये मैं CH3 नीचे ले गया, right, just to draw like this, so this is OH here, CH, and this is going down like CH3 CH2 COOH, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CH CH2 CH3 and O, ये वाला O इधर जाएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O, देखो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, this is attached to this carbon, इस कार्बन पे ये दो कार्बन C2H5 लगे थे, तो C2H5 like this, इनके बीच में क्या हो रहा है? एस्टर लिंकेज बन रहा है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, इन कंट्रोल्ड रिलेटेड रिलीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल अभी जो हम यूज करते हैं वो सब ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल का जो कोटिंग होता है वो भी ऐसे ही होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बना होता है। जैसे हम जाते हैं कैप्सूल को लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है पेट में जाके, है ना। नाउ नायलॉन 2 नायलॉन 6, राइट, ये क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीमर, सॉरी अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। तो याद रख लो ग्लाइसिन, आपने ग्लाइसिन नेटो में देखा था, राइट, आगे भी देखेंगे ग्लाइसिन, दिस इज गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे याद ये रखना है, जैसे बाकी सारे नाइलॉन्स में दोनों COOH एक ही पे होते थे, दोनों NH2 एक ही पे थे, राइट, नाइलॉन 6,6 में स्पेशली हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, बट यहाँ नहीं है, राइट।
दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, आप पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसमें कितने कार्बन है, 2, हमें 6 कार्बन वाला चाहिए, तो 6 कार्बन वाला कैसे हो जाएगा, CH2 फुल 5 COOH NH2, so this is going to be 6। अब इनके बीच में बॉन्ड बना लो, इसको बोलते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड, याद रखना पड़ेगा हमें, कैप्रोइक एसिड का डेरिवेटिव है, सो अमाइनो कैप्रोइक एसिड। सो इज बायोडिग्रेडेबल, इसके ये यूज होते हैं जो कोई जैसे कहीं सर्जरी वगैरह होती है तो वो टागे लगाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट, ये वो उससे होते हैं जो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा फाइबर है ना बॉडी में, तो इट इज ए, हाँ स्टिचेस राइट, मैंने हिंदी में बोल दिया टागे। ओके तो लेट्स से दिस इज दैट्स इट, ये एंड हो गया, ये खत्म है पॉलीमर। इसके बाद है बिसाइड्स द पॉलीमर्स, ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर, यहाँ देख लो, ये पॉलीप्रोपीन है ना, बहुत सारे अब ऐसे आएंगे, इनको एक बार आप देखते जाओ। तो पॉलीप्रोपीन प्रोपीन से बन रहा है, टॉयज पाइप्स, इन सब में पॉलीस्टाइरीन है ना, अगेन टॉयज, रेडियो, टेलीविजन कैबिनेट, यहाँ पे दिस इज रेन कोट्स, वाटर पाइप्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स, अनब्रेकेबल कप्स एंड क्रॉकरी के लिए हमने मेलामाइन वाला भी देखा था, ठीक है, ग्लिप्टल। तो यहाँ पे एक जो नाम है ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर है, क्योंकि यहाँ पे थैलिक एसिड हम ले रहे हैं। थैलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, तो ये ग्लिप्टल, ये थैलिक एसिड है, इसका एस्टर बनेगा, राइट, यहाँ देख लो, ये एस्टर बन रहा है सेकेंड पोजीशन पे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लेकर्स में आएगा ग्लिप्टल। नोवोलैक भी आता था पेंट में, यूजर में, बेकेलाइट फॉर मेकिंग कॉम, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंप्यूटर डिस्क, बस ये तो ये हो गए भाई आपके डन पॉलीमर। अब बताओ कैसा, समझ में आया, आसान है ना बहुत, बस 2-4 चीजें याद रखनी है, राइट। उसमें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको याद क्या रखना है, जैसे इथीन वाले हैं या फिर स्टायरीन और ये प्रोपीन, ये जितने भी हैं इनके तो बहुत आसान है, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड। कहीं कहीं पे मोनोमर और पॉलीमर थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो उनके थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, जैसे टिलीन का था तो टेरेथैलिक एसिड है, राइट। One COOH group is present in so and other in meta on benzene ring, then what is it called? I think उसको बोलते हैं, अभी मुझे याद था, रुक जाओ, आइसोथैलिक एसिड, आई थिंक आइसोथैलिक एसिड उसको। ग्लिप्टल में क्या है, आपका एस्टर लिंकेज है, बस, ठीक है। आपने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, सेम है, इसमें हमने CH2OH, CH2OH, बस ये OH और ये COOH ग्रुप आपस में एस्टर बनाएंगे, ये वाला OH आगे के दूसरे वाले से बनाएगा, तो यहाँ पे देख लो, ये CH2OH ये आ गया यहाँ तक, इथाइलिन ग्लाइकोल से आया, ये COOH CO, मतलब ये CO इससे आया आगे, बस एस्टर बना दिया। तो इजी चैप्टर है ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पहले छोटे छोटे चैप्टर खत्म करेंगे, इसमें मेडिसिन के बारे में है, ठीक है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सॉलिड स्टेट चलेगा अपने नॉर्मल वाले में, ठीक है, क्वालिटेटिव के बाद सॉलिड स्टेट, क्वालिटेटिव के बाद सॉलिड स्टेट लास्ट चैप्टर रहेगा, और थोड़ा सा हो रह गया है रेडियो एक्टिविटी, वो बता देंगे। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में हो गया, रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में हो गया, हाँ तो फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, एक बस रॉक डेटिंग बताना है,
हाँ, और रॉक डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बताना है। कार्बन डेटिंग मैं बता चुका हूँ एक बार बीच में, मैंने कभी तो बताया था कि टी ब्लॉक में बताया था। तो बस रॉक डेटिंग बताना है मुझे, और एक आध क्वेश्चन उसके केमिकल काइनेटिक्स के हैं बस। आपको वो स्टेबिलिटी वाला ग्राफ देख याद रखना है ना, एन बाई पी रेशियो, एक मतलब डिजायरेबल से ज्यादा होगा क्या होगा, है ना, वो स्टेबिलिटी वाली एक जोन आता है, राइट, उसके ऊपर और नीचे पूछते हैं। कल इनऑर्गेनिक करेंगे, हाँ कल कैटाइंस को करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खुद से भी पढ़ सकते हैं, नहीं नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, के बाद मैं पढ़ाऊंगा। आई विल स्टार्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें आना है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स इट। पॉलीमर के कितने क्वेश्चन आते हैं? पॉलीमर से जनरली एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आता है मेंस में तो आता है। ओके, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। चलो, ओके, दैट्स इट, एंजॉय।